Tutorials by Pratiksha. My name is Pratiksha, a wedding guest makeup look. Let's start. Subscribe, hit the bell icon for notification, like, share, comment, #BraFamHeart. Follow me on my social medias and also subscribe to my other channels which are popping on the screen and links are in the description box. And this is my small business called Fashion World, and you can support me by following us and buying our affordable products. This is my another Instagram ID you can follow, and all the makeup products are linked down in the description. Now let's get started with today's wonderful makeup look. This is going to be a green slutty eyes कह सकते हो, with it is a cut crease look, and also this is a very glam makeup tutorial that you can carry with either green dress or with brown dress. So आप कलर चेंज कर अपने हिसाब से इसको मिनिमलाइज कर सकते हो. So let's get started. चलिए शुरू करते हैं हमारी मेकअप के साथ. तो सबसे पहला स्टेप होता है स्किन केयर. स्किन केयर में हम 5 steps follow करते हैं mainly to improve our texture basically. Secondly, to prevent our skin from makeup. Third, to make our makeup base look more flawless, even, and also smooth. If you don't do or correct skincare or follow correct steps skincare routine before makeup, then your makeup is gonna look cakey. It is gonna have dry patches in winters, and you will face a lot of problem with patchiness and not good makeup. So if you want your makeup to stay for a long time, so do skincare. So first step is to cleanse your skin. For that, I'm going to use the Mamaearth Vitamin C face wash. This has turmeric and vitamin C in it, which will clean your face really nicely first of all. And turmeric is an antiseptic, which will help you to remove your marks. And I'm having a lot of marks these days due to, so I am getting on my T-zone on around my lips. So I'm using these days this, and I'm getting a nice sort of a result. I'm not gonna say I'm getting extreme result, because जब आप अंदर से कुछ खाओगे नहीं, मतलब इनटेक अच्छा नहीं कर रहे हो, then आपकी स्किन अच्छी बिहेव नहीं करेगी, no matter how expensive products you use. So ये अच्छा काम कर रहा है. नेक्स्ट हम अपनी स्किन को टोन अप करेंगे. ये फेस वॉश कितने का रिटेल करता है मैं आपको बता देंगी. तो दिस रिटेल्स फॉर 249 रुपीज, बट इट इज ऑलवेज ऑन सेल एंड यू विल गेट इट under 200, under 150. Next I'm gonna use my DIY toner. This is the DIY toner which I made. This is the video. You have to go to my channel. ये भी latest video आप जाके देखो. So wedding season में क्या होता है ना, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा थकी दिखती है, इसीलिए रोज वाटर, जो नेचुरल रोज वाटर ये मैंने बनाया है घर पर. सो ये आपकी स्किन को अच्छे से नरिश करेगा, मॉइस्चराइज करेगा, एंड ऑल्सो वो पिंक चीक्स आपको पता है ना विंटर्स में कितने अच्छे लगते हैं, सो वो भी देगा. सो इसको मैं अपने फेस पे स्प्रे करके अच्छे से आई विल मसाज. As you can see, my skin has nicely absorbed this toner. Now what I'm gonna do, I'm just gonna take a rinse of it. And can you see that rosiness? I will apply it on my cheekbones. इससे क्या होगा ना, I'll get rosy cheeks, and पूरे face से मेरा स्किन थोड़ा ज़्यादा pinky दिखेगा. And it's winter, so we need much of everything. Even I have oily skin type, but it's not enough. Okay, next I'm gonna use the Pond's Super Light Gel Moisturizer. Now it is for oily skin type, but if you apply and lather it nicely, now it is gonna stay for a long time, longest time,
and also so affordable. Like you can get this for 40 rupees till this is the bigger size for only 150 rupees. You get a 73-gram product, so it's quite affordable and it's in a gel consistency. Even I use this in winters. I don't think ये बिल्कुल भी मुझे ड्राई आउट करता है, बिकॉज जो एलोवेरा जेल था पतंजलि का जिसको मैं हमेशा गर्मी में यूज करती थी, दैट इज ड्राइंग मी आउट. तो अभी मैं इसी को यूज करना पसंद करती हूँ विंटर्स में. दिस इज सो गुड. मैं आपको अच्छे से एक बार इसकी पैकेजिंग दिखा देती हूँ. मुझे बहुत पसंद आई इसकी पैकेजिंग. नॉर्मल सी टब पैकेजिंग है. यू गेट अ वेरी नाइस क्वांटिटी, लाइक वेरी नाइस. हाइलाइटर, लिक्विड हाइलाइटर है तो आप ऐसे इसको डायरेक्टली लगा लो. पाउडर हाइलाइटर है तो भी आप बना सकते हो. मैं यहाँ पर ये M&M का ले ली हूँ. दिस इज मेकअप एंड मोर highlight palette for all skin shades. Like you get for fair to like dusky to duskier, and medium के लिए भी है, pink tones के लिए भी है, white tones के लिए भी है, yellowish tone के लिए भी है. So it's overall all-rounder palette. You can even, if you love to bronze your skin with highlighters, मतलब इससे you can do it. So हम क्या करेंगे, मैं ये ब्रश ले रही हूँ जिसका ये वाला टूट गया है, तो हम इससे स्क्रैच करेंगे इस हाइलाइटर को. I'm going to take this mirror, इसमें मैं प्रोडक्ट को स्क्रैच कर लूँगी. आई थिंक मेरे पर यही स्किन हाइलाइटर इस टोन का सूट करता है, तो मैं इसी को ले रही हूँ. देख सकते हो इससे काफ़ी नीटली लाइक स्क्रब हो जाएगा. आपको बिल्कुल थोड़ा सा चाहिए, लिटरली ये बहुत ज़्यादा हो गया. Guys, this product is hell pigmented, so like इसका swatch देखो आप. Swatch. This is ये ivory shade. I think fair skin tone बहुत अच्छा लग रहा है, या मीडियम पे. तो देखो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा निकाल लिया है. अब मैं लूँगी ये पतंजलि का एलोवेरा जेल. प्राइमर का बहुत अच्छा काम करता है, या फिर आप ये मॉइस्चराइजर भी ले सकते हो. ये भी एकदम अच्छा प्राइमर का काम करता है. बट एक लेयर लगा लिया तो फिर वही चीज़ दोबारा लगाने का कोई सेंस नहीं बनता. इसमें हल्का सा क्वांटिटी मैंने लिया, लाइक 1 पाउंड के करीब, क्योंकि ये भी विंटर्स है इसीलिए. इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी. ये देखना एक हाईलाइटेड प्राइमर का काम करेगा. मेक श्योर आप जिस सरफेस पे ये DIY बना रहे हो वो सरफेस क्लीन हो. लाइक जो मिरर था मैंने उसको अच्छे से पोंछा था, अदरवाइज वो आपको क्रैक्स भी दे सकते हैं. हियर इज आवर DIY इल्यूमिनेटर रेडी. ब्यूटीफुल. दिस इज. मैं पहले आपको एक हैंड स्वैच दे रही हूँ. देखो इसको, ये मैं पहले बोल रही हूँ, इसको फाउंडेशन के अंडरनीथ में यूज़ करना है. मैं जो फाउंडेशन यूज़ करने वाली हूँ वो मैट है. आई नीड समथिंग वेरी ड्यूई and illuminating, so you can make your own DIY at home. मतलब I love using this in winters. I love glowy base. अगर you have extreme oily skin and आपको नहीं चाहिए, you can skip this step. and बिल्कुल chunky particles नहीं, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है मैं चंकी पार्टिकल्स लगा रही उठा के. इट जस्ट द ग्लो दैट इट गिव्स. खाने में भी थोड़ा क्रेजी लगेगा, बट आफ्टर अप्लाइंग फाउंडेशन सिर्फ और सिर्फ ग्लो दिखने वाला है एंड नथिंग एल्स विल सी. एक तो ये होगा मेरी स्किन अच्छे से प्राइम हो जाएगी, एंड दूसरा ग्लो मिलेगा. इट्स नॉट द यूजुअल ग्लो. ये वेडिंग सीजन के लिए है. थोड़ा सा लिप्स को भी मॉइस्चराइज कर लेते हैं. के लिए दिस निविया लिप बाम. I'm gonna apply this on my lips.
looking like a clown right now. So अभी क्योंकि 1 मिनट हो गया तो हम लगाएंगे फाउंडेशन. तो I'm gonna use the Maybelline Fit Me one. This is the bigger bottle and this is a small pouch. You can get it for 500. You can get the smaller one for 200 and this one for like 50 rupees. I'm in the shade 230 Natural Buff. It's a darker shade for me, but I love using darker shades because lighter shades से तो काफी better ही होते हैं. And इसमें मैं कोई भी dewy-ness या dewy primer add नहीं करने वाली because we have a lot of thing going on our skin. देखो सिर्फ इतना सा लिया है. It's going to and then just blend it out. I know it's funny, but इससे फाउंडेशन कभी क्रीज नहीं करता है. I have tried it. Even though मेरी स्माइल लाइन्स है नहीं, थोड़ी बहुत है, and you can see स्माइल लाइन्स दिखती भी नहीं है. Spickling on नहीं कर रहा है. And you have to set it with a powder even if it is winters and even if you have dry skin. Crazy लग रहा है, but it's a foundation. It will look like that even. Let me give it. तो जब तक आप सेटिंग स्प्रे नहीं लगाओगे, लिपस्टिक नहीं लगाओगे, आपका मेकअप अधूरा सा लगता है. आपने शुरुआत में देख लिया कि मेरा बेस कितना खूबसूरत लग रहा है. सो प्लीज़ कमेंट मत करना. मुझे ना, क्योंकि मैं प्रो मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, जस्ट अ पर्सन हु नोज मेकअप प्रीटी वेल. तो अब मैं क्या करूँगी, पाउडर से सेट करने से पहले इसमें थोड़ा और डाल के इसको हल्का सा कम ही स्क्वीज करके इसके ऊपर हल्का सा रोज वाटर को वैसे डैब करिए ताकि जो भी अनब्लेंडेड चीज़ है वो अभी ब्लेंड हो जाए. बाद में उसको केकी होने का चांस ही ना मिले. क्योंकि मैं अभी पाउडर प्रोडक्ट नहीं लगाऊंगी. नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे कंसीलर. तो कंसीलर के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ द ब्लू हेवन फ्लॉलेस लिक्विड कंसीलर. मैंने पहले बेस मेकअप किया है. इट्स अजीब बिकॉज मैं पहले हमेशा आई मेकअप से शुरुआत करती हूँ, बट सच्चाई ये है कि मैं भूल गई थी. तो हम कंसीलर को फटाफट से ब्लेंड करेंगे इंडिविजुअली. लाइक एक पे ऐसे लगाया एंड देन फटाफट से मैं ब्लेंड करूँगी इसको. दोनों साइड में मैंने एज यू कैन सी कंसीलर अप्लाई कर लिया है. सो क्योंकि मैंने अपना जो बेस है कर लिया है एंड आई डोंट वांट फॉल आउट्स एंड मेरे आई शेडोज दे गिव अ शेड फॉल आउट. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू टेक दिस लूज पाउडर फ्रॉम स्पींच. मैं इसको अच्छी क्वान्टिटी में लूँगी, ज़्यादा ही निकल लिया, कोई बात नहीं. मैं इसको दूसरे टिक्के में रख देंगे. एंड मैं सिर्फ अंडर आइज पे इसको लगा रही हूँ ताकि जो भी फॉल आउट हो ना, इसको जब हम डस्ट ऑफ करें तो उसके साथ ही वो डस्ट ऑफ हो जाए फॉल आउट. सो इसलिए मैं इसको स्टेप से लगा रही हूँ. हल्का सा लिड्स पे भी लगा लेंगे. ये जो पाउडर बचा है इसको हम अपने नेक पे लगा लेंगे. Has 108 shadows. So let's start. I'm making Joker right now, guys. Hi guys. Let's have one brush. Okay, so ये brush
ब्रश क्लीन करते हैं। थोड़ा सा इसमें भी कोई भी पानी वगैरह रोज वाटर जो भी है स्प्रे कर दो, ठीक है। और इसको एक कपड़े में हम क्लीन कर लेंगे। अपने टॉपी से करते हैं वाला। ओके, सो हम सबसे पहले ग्रीन शेड पिक करते हैं। जो मेरे पास ट्रांजिशन के लिए कोई भी ग्रीन शेड नहीं है, ये वाला बहुत ज़्यादा लाइट है, पिगमेंटेड नहीं है। What I'm gonna do, I'm gonna pick to brown because brown सबके साथ जाता है। So I'm gonna go to this shade and I think ये darker shade ज़्यादा अच्छा लगेगा। So I'm gonna go with the darker shade, okay? So आज मैं zoom in नहीं कर रही हूँ because I want a very chill, relaxing makeup look for the video. As always, I love to make V's and as always I am making V। अच्छा डिफरेंस आ जाता है ना सिर्फ ये करने से। ये कलर एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा प्यारा ज़्यादा ही यूज़ हो रहा है, बट यार कंसीलर को यूज़ करना पड़ता है। सो मैं ले रही फिर से कंसीलर ट्रस्टवर्दी ब्लू हेवन इन द शेड वनीला। सो हम एक कट क्रीज काइंड ऑफ ड्रॉ करेंगे विद दिस वॉन्ड ओनली। सारा एक्सेस रिमूव कर दो बिकॉज उसमें बहुत सारा एक्सेस रहता है। अप्लाई सम प्रोडक्ट लाइक दिस एंड ऊपर ऐसे देखो, कंसीलर एक्चुअली लिक्विड ही नहीं है तो मैं अपने अकॉर्डिंग क्रीज बना रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो कट क्रीज हाफ ऑफ द वे। Let it be dry. No matter how much it gets dry, it will be more nice. थोड़ा सा इस आँखों में लगाएंगे। सिर्फ 1/3 है ये, I think 1/3 है या 1/4। हल्का सा पाउडर ले रही हूँ यहीं से, इस पे लगाऊंगी ताकि ये क्रीज ना करे या फिर कुछ भी ना करे ना। क्योंकि हमें ग्रीन आई कर रहे हैं, मैंने पहले ही कहा ये कलर बहुत खूबसूरत है दिस वन। सो मैं इसको इसी ब्रश से पिक आउट करिए बिकॉज हम कंसीलर के ऊपर लगाएंगे ना तो ये बहुत अच्छा पिगमेंटेड आएगा। बट वैसे भी ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है क्योंकि ये फैल जाता है इसे लगाने से, इसलिए मैं कंसीलर के ऊपर लगा रही हूँ। सो ये टिका रहेगा एंड कट क्रीज वेरी नाइस। काफ़ी अच्छे से मैं इसको मेरी इनर थर्ड जहाँ तक मैंने कंसीलर लगाया है जस्ट उसके ऊपर इसको मैं अप्लाई करूँगी। इससे नीचे उसको एक बेस मिल जाएगा तो उसका कलर और प्यारा आएगा। Okay, now I will next go to this lighter shade। फिर से हमारा कंसीलर आ गया, थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ लुक है। इसको मैं अगेन अपने रेस्ट हाफ लिड पे लगाऊंगी, जस्ट टैप कर दूंगी सेम ब्रश की मदद से ताकि अगेन क्रीज ना करे। सेम आई एम गोना डू ऑन माय अदर आई एज वेल। देन आपको फिर से हमने वही कमाल किया है। एज आई सेड मैं वो लाइटर ग्रीन शेड ले रही हूँ, उसे दिखा देती हूँ, आपको कंफ्यूज मत करना। ये भी काफ़ी प्यारा पिगमेंटेड शेड है। एज आई सेड ये फैल जाते बहुत जल्दी, इसीलिए मैं इसको ना सिर्फ कंसीलर के हाफ पे लगा रही हूँ। जो भी मैंने कंसीलर लगाया है मेरी मिडिल लिड सिर्फ
मिडल लिड पे। एंड ये दोनों कलर में हम हल्का हल्का बीच में मिक्स कर लेंगे टू गिव एन ओम्ब्रे सॉर्ट ऑफ शेड। तो ये अलग अलग कलर्स नहीं लगेंगे, ऐसा ओम्ब्रे सा इफेक्ट आएगा फ्रॉम डार्कर टू लाइटर ग्रीन का। अब मैं ये देखो पिगमेंटेशन अभी आईज पे देखो कितना कलर लग रहा है, क्योंकि हमने डिफरेंट वे में इसको यूज किया है। आई होप आप समझ पा रहे हो मेरी फीलिंग्स को। नेक्स्ट कलर I'm gonna go with this shade। ये हल्का सा ग्रीन तो नहीं है बट लाइट है सबसे, और हम डार्कर टू लाइटर शेड में जा रहे हैं। तो रिपीट द सेम, रेस्ट एरिया जितना भी बचा हुआ है मैं वहां पर इस शेड को डिपॉजिट करूँगी। सेम इस साइड पे भी करेंगे, हल्का सा ज़्यादा देखिए, इसको मर्ज करेंगे विथ द अदर ग्रीन। ठीक है, look at that beautiful liner kind of effect। okay, लाइनर भी हम लगाएंगे, the blue heavy liner। पतली सी लाइन ड्रॉ करूंगी, कोशिश एटलीस्ट करूंगी the मोटी because we end up making it that मोटी lines। halfway through the bottle। I love this, look at that man। अब मैं मस्कारा लगाऊंगी। दिस वन इज फ्रॉम द कलर, क्या कहते हैं इसको, कलर फैशन waterproof liquid mascara। this is not waterproof, this is smudge proof when it dries, and it dries so late, but yeah, it retails just for 50 rupees। the packaging, आउट ऑफ पैकेजिंग भी दिखा दे रही हूँ, काफी अच्छी पैकेजिंग लगी मुझे ये दोनों, बट ये थोड़ा प्रोडक्ट पे ध्यान में, पैकेजिंग पे नहीं। प्रोडक्ट अच्छा है 50 रुपीज के हिसाब से, बट कैन मेक इट मच बेटर। ओके, I'm just gonna apply it on my lashes to give them a little blackness because उनपे lashes पे concealer लग गया। I have pretty long lashes, तो मुझे जरूरत नहीं है lashes की, फॉल्स lashes की, और मुझे लगाना भी नहीं आता है। अगर आपको आता है well and good। अब lower lash line पे पहले इसको क्लीन कर लेते हैं। इसको रफ यूज करते हैं, थोड़ा सा यही वाला कलर लूंगी मैं, ये हल्का सा डार्क है। अच्छा, बहुत लोग पूछते लोअर लैश लाइन करने से क्या फर्क पड़ता है, कैन यू सी क्या फर्क पड़ता है। इस आंखों में नो लोअर लैश लाइन एंड इट लुक्स अमेजिंग। अभी लोअर लैश लाइन भी हो गया है, तो हम इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करने के लिए यूज करेंगे दिस शेड। This is the M&M Makeup and More, as I said, this is the palette and this is the color which I use on my inner corners। Now I like to use it very thin, क्योंकि जिनकी छोटी आँखें हैं ना, this step is gonna work to make your eyes look बहुत बड़े बड़े, bigger and fuller, and kind of almond shape भी बनाता है ये। Look at that difference।
वैसे मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, बट हल्का सा ही एकदम काम कर रहा है, बस इससे ज़्यादा नहीं करनी मैं। अब फाइनली हम बेस की तरफ मूव करते हैं जो बचा हुआ है। पहले हम स्पंज ले रही हूँ मैं और इस सबको जो पाउडर है इसको हटा रही हूँ। एक्स्ट्रा पाउडर को मैं अपने पूरे रेस्ट ऑफ फेस में डिपॉजिट कर रही हूँ। नाउ इन सबको थोड़ा मैं अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए सेम कंसीलर का यूज़ कर रही हूँ। इधर इधर एरियाज पे ना थोड़ा जब फोटोज खींचते तब आपको पता चलेगा ये सारी एरियाज काली दिख रही है। जस्ट मेक देम लुक हाईलाइटेड। ठीक है, अब हम करते हैं थोड़ी सी कंटूरिंग, बिकॉज कंटूरिंग नहीं करोगे तो आपका फेस थोड़ा अजीब लगेगा। तो मैं ये ब्रश ले रही हूँ एंड मुझे ये कलर यूज़ करना बहुत पसंद है एज माई ब्राउन फेस को सेट करूंगी विद दिस। Then I'm going to just pat this in with my beauty blender. Then अब हम लगाएंगे हाइलाइटर। वो वाला इल्यूमिनेटर कहाँ गया? सो ये वाला जो हमने इल्यूमिनेटिंग क्रीम लगाया है इसी को मैं ऐसा हाइलाइटर में यूज कर रही हूँ। Can you see that glow? मैं फटाफट इसको यूज करके आती हूँ। यूजुअल हाइलाइटर इस पर लगा लिया है। लिपस्टिक के लिए I'm just gonna use the Liboni lipstick in the shade 801. This is cruelty free. This is the shade. Last step is going to be a बिंदी। कितना प्यारा मेकअप लग रहा है ना मेरा। ये कैसा पेन टाइप का है। इसमें काजल ले रही हूँ, DIY काजल। छोटा सा बिंदु बना दूंगी।